criminals most wanted. حسنین علی عمر 14-15 برس گھر سے نکلا اور پھر لوٹ کر نہ آیا۔ اس درمیان کیا کچھ اہل خانہ پر گزر گیا۔ پروردگار عالم ہر اولاد والے کو ایسے مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، الہی آمین۔ یہ ہے چک نمبر 81 جیم بے، سجادہ، فیصل آباد کا علاقہ۔ یہاں ایک دوپہر سب کچھ بالکل ایسا ہی تھا، ہر جانب چین و سکون۔ انہی تمام معاملات کے درمیان ایک گلی سے یہ کم عمر بچہ کھیلتا کودتا ہوا شاید اپنے عزیزوں کے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ اسی درمیان اسی راہ کی جانب جاتے ہوئے ایک شخص نے موٹر سائیکل روک لی۔ شاید وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور وہ بچہ ہنستا مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ اس موٹر سائیکل سوار کو بخوبی جانتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار دور تک جاتے ہوئے آخر کار نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دن کی گھڑیاں آہستہ آہستہ بیتتی جا رہی تھیں، مگر گھر سے گئے ہوئے حسنین علی تقریباً 14-15 برس کا بچہ ابھی تک منظر پر نہ ابھر پایا۔ ادھر گھر والے یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں کہ حسنین کہیں گیا ہو اور فوری طور پر لوٹ کر نہ آ گیا۔ یہ آج حیران کن معاملہ درپیش تھا۔ اہل خانہ پورے محلے میں حسنین کو تلاش کرنے میں لگے تھے۔ اس کے بعد ہر جانب سے مجبور ہو کر علاقے میں موجود نشاط آباد پولیس اسٹیشن کو اس وقوعے سے آگاہ کیا گیا۔ اہل خانہ نے تمام تر کوششوں کاوشوں کے ادھورا رہ جانے پر پولیس اسٹیشن کو یہ آگاہ کیا کہ ان کا بچہ کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی علاقہ پولیس کے اہلکار بھی اسی بستی میں آ پہنچے۔ ناظرین، تفتیش و تحقیق کرتے کرتے قانون کے اہلکار خود الجھنوں کا شکار ہونے لگے کہ آخر اس بستی میں کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ کہیں سے کوئی بچہ اغوا کر لیا گیا ہو۔ اور پھر اس بستی میں رہنے والوں کے پاس اتنی دولت و جائیداد بھی نہیں تھی کہ اغوا برائے تاوان کا کوئی کیس منظر پر کبھی ابھرا ہو۔ آخر سورج کی چمکتی ہوئی روشنی بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گئی، لیکن وہ معصوم، اس کا کہیں کوئی پتہ نہ چل پایا۔ رات کی تاریکیاں اپنے پر پھیلانے لگیں اور یہاں بچے کے اہل خانہ کا دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔
صاحب ہوں یہ سارا علاقہ ادھر تو پھرے کھلوتے ہیں ہوں لوگ گلا آ جائے اس پاس سائڈ سے اس سائڈ تے بھی آپ موڑے اس سائڈ سے پھر رہے ہیں رایا کھلوتا بڑا سارے اور اس لمحے گاؤں کے بڑوں نے یہ طے کر لیا کہ پورے علاقے میں حسنین نامی بچے کو تلاش کیا جانا چاہیے۔ اور تلاش جستجو کا یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، اس بستی کا کونا کونا چھان لیا گیا مگر اس ماں کا چہیتا بیٹا کہیں بازیاب نہ ہو پایا۔ ناظرین، ایسے موڑ پر اولاد والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اہل خانہ کا احوال کیا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب علاقہ پولیس کے اہلکار مختلف انداز سے تفتیش میں لگے ہوئے تھے کہ شاید کہیں سے کچھ معلومات یکجا ہو پائیں۔ یہاں موجود افراد کے درمیان سب کچھ یوں ہی جاری و ساری تھا۔ ساری رات ساڑیاں دوڑاں لگیاں رਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਖਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ। ਦਿਨੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ, ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਫੈਤਿਆ ਕਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਧਰ ਆ। बाद में 10 बजे घर से निकला हसनैन अली, तो हमने घर इसकी वालदा यही सोचा कि वो तो उधर गया उस घर में अपने ताए के घर में। तो मैं शाम को जब वापस आया 8 बजे आया दुकान से, मैंने पूछा किधर है, बोलते वो गांव में चला गया है, उधर ही है। फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के उधर गया ढूंढा, तो वो बोलते सुबह से आए नहीं इधर। फिर ढूंढना शुरू किया, पूरे गाँव में ढूंढा, जिधर जैसे पूछते बोलता देखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। بس یوں جانیے کہ یہاں قانون کے اہلکار اپنے تئیں چھان بین کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ شاید کوئی سن گن مل پائے کھوئے ہوئے بچے کی تلاش میں۔ وہ لڑتا تو نہیں تھا گھر میں، لڑا تو نہیں کسی کے ساتھ، ناراض تو نہیں ہے وہ؟ کیوں بھائی؟ اسکول میں کسی سے اس کی لڑائی ہوئی ہو، کسی کو اس نے مارا ہو، یا اس کو کسی نے کہا میں ماروں گا، کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں مجھے پتہ ہے۔ ہاں، کس کا؟ وہ جو تصویریں کھینچتا ہے، جو تو اچھا جو تصویریں بناتا ہے، جس کی وہ ادھر دکان ہے باہر، اس کے ساتھ؟ اچھا، اور کون تھا وہ؟ جو ادھر اچھا، جو گاؤں میں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بھائی احمد۔ احمد کے؟ اچھا احمد، یار آپ تو بہت اچھے بچے ہو، ذہین ہو ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کو میں نا سرانٹی لے کے دوں گا، پوری بات بتانی ہے آپ نے۔ اچھا احمد، وہ اس کو کہاں سے بٹھایا احمد نے؟ ادھر سے آ رہی تھی، کدھر سے آ رہے تھے وہ؟ ادھر سے۔ ادھر سامنے سے؟ آپ ادھر سے آ رہے تھے اور وہ احمد کے ساتھ جا رہا تھا ادھر؟ آپ نے کتنے بندوں کے نام لکھے ہیں؟ سر 2، ایک سفیان ہے اور امیر ہے سر۔ آپ نے؟ میرے پاس بھی 2 ہی ہیں۔ آپ نے؟ میں نے سر 1 کا بتایا۔ آپ نے 1 کا بتایا، یہ ہو گئے 4 اور 5۔ جی سر، 5۔ یہ 5 کو پہلے اٹھاتے ہیں، ان کو پلگ کرتے ہیں، ٹھیک سر، ان کو چیک کرتے ہیں۔ میرے والے تو سر دونوں ان کے عزیز ہیں، وہ ادھر ہی ہیں، ان کو کہہ کے بلا لیتے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے۔ اسی درمیان ایک تو یہ تھا سر، اس کو پکڑے، دوسرے بھی لے آئیں، ادھر کھڑے ہو جاؤ، اس کو پکڑنا سامنے، تو ادھر آ، ادھر آ، چوتھا بھی لاؤ۔ تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ کیوں بھاگ رہا ہے؟ دوران تفتیش کچھ ناچاقی کا ماحول منظر پر ابھرنے لگا۔ آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، آپ کے ہم آپ کے بچے کو ٹریس کر رہے ہیں نا، بچے کو آپ کو
मालूम हुआ कि कानून के एहलकार कुछ मशकूक अफराद को यहाँ से अपने हमराह पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। बच्चा आगे आपके रिश्तेदारों में ही है, हम वो चेक कर रहे हैं, आप हमारे साथ तामन करें बजाय इसके गुस्सा में। नहीं, इनको हमने ले जाना है, बच्चा आया तुझे साडे नाल जास्ती करनी है, उसको हमने ले जाना है, हम चेक करेंगे। आसान जेड़ा जिस पर गांव वाले चरागपा हैं कि हमारे गांव में ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है कि जो जराइम पेशा हो। नहीं मारना कुछ साडे बच्चियां नु जे कुछ आ गया अहीं ते अगे रोए पिटे पे हम बैठ कर इनकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर ये बेगुनाह तो हम छोड़ इतना देंगे। अड्डा मेरा वादा। बस यही तकरार जारी थी। आखिरकार कानून के एहलकार तफ्तीश में मुनासिब जवाब न देने वालों को अपने हमराह लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम इस लम्हे उसी मोड़ की जानिब जा रहे हैं जहां से हम ब्रेक पर गए थे, और ब्रेक के बाद क्या हुआ शुरू करते हैं ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी गमनाक दास्तान कि जिसमें एक 14 साला मां का लख्त जिगर मंजर से गायब हो गया और पूरी बस्ती को यह पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कहां है। नाजरीन, इसी तनाजुर में इलाका पुलिस के एहलकार मतलूबा बस्ती से कुछ मशकूक लोगों को अपने हमराह ले जाना चाहते थे, जिसकी बायस आपस में नाचाकी शुरू हो गई। लेकिन कानून के एहलकारों ने यह तय कर लिया कि तफ्तीश तो किसी भी सूरत जरूर होगी। बड़ी याद, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपके हम आपके बच्चे को ट्रेस कर रहे हैं ना, बच्चे को काटने बच्चे क्यों आपको। मगर अहले इलाका किसी भी सूरत में रजामंद नहीं थे कि गांव के ही लोगों को तफ्तीश के लिए ले जाया जाए। हम वो चेक कर रहे हैं, आप हमारे साथ तामन करें बजाय इसके गुस्सा में। नहीं, इनको हमने ले जाना। लोगों का कहना था कि मुल्जिम तो कहीं और से आया होगा, मगर हमारे ही गांव पर जुल्म क्यों किया जा रहा है। नहीं मारना कुछ साडे बच्चियां नु जे कुछ आ गया अहीं ते अगे रोए पिटे पे हम बैठ कर इनकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर ये बेगुनाह तो हम छोड़ इतना देंगे। अड्डा मेरा वादा। कानून के एहलकार तमाम तर इनकार के बावजूद कुछ लोगों को अपने हमराह लेकर निशाताबाद पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। किधर थे? हुआ तो है, आप किधर थे? यहाँ लाए हुए अफराद से इब्तदाई मालूमात हासिल की जाने लगीं। यहाँ यह सिलसिला यूं ही जारी था कि इसी दरमियान बस्ती के मोअज़्ज़िज़ीन और दूसरे अफराद पुलिस स्टेशन आ पहुंचे। बहुत परेशानी है, फिर पानी करो इन्हां नु मैं ले जाना है। आने वाले इन अफराद का यही इसरार था कि तहवील में लिए गए गांव के लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि ये किसी जुर्म में हो ही नहीं सकते। बच्चे को बरामद करना है, बहुत कीमती जान है बच्चे की, हम नहीं इनको छोड़ सकते। कैसे छोड़ दें बताओ? मेहरबानी करो, घर दे अगे साडे बड़ा बराम बच्चा ये आया। भाग जाएंगे। इसी तकरार के दरमियान पूछगछ के लिए लाए हुए गांव के अफराद को मजबूरन जाने की इजाजत दे दी गई। आप इधर साइन कर दें, जब असलम साहब आपको फ़ोन करेंगे ना, आपने उसी वक्त लेके आ जाना इन सबको, ठीक है ना? चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, वक्त गुजरता चला गया। यहां गुफ्तगू ये जारी थी कि बस्ती सज्जादा के 14 साला लड़के का अभी तक कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाया। हमारे अफसरान बाला बार बार उस केस की बाबत पूछते हैं।
इस तरह वक्त गुजरता चला गया, यानी 4 माह बीत गए, मगर 14 साला लड़के हसनैन का कहीं कोई नामो निशान न मिल पाया। और यूं आ गया माह नवंबर 2022, यानी 4 माह बीत चुके। बस्ती सज्जादा फैसलाबाद के इस इलाके का मंजर आज भी बिल्कुल यूं ही था। नाजरीन, गांव के आते हुए ये 2 अफराद शायद खेतों में कामकाज के लिए इसी जाने पेशकदमी कर रहे थे, और ये दोनों अफराद आने के बाद इसी तरह अपने कामकाज में मसरूफ हो गए। खेत में काम करते करते अचानक ही एक नया मरहला सर उभारने लगा। यहां काम करते करते ये शख्स जैसे अचानक ही परेशानियों से हमकनार नजर आ रहा था। ये बगौर अंदर की जानिब टिकटिकी बांधकर देखने लगा और इसके बाद अपने दूसरे हमराही को आवाज देकर यहीं बुला लिया। ये देखो, पीछे इंसान। ये दोनों अफराद हैरान और परेशान ये देख रहे थे कि एक ढांचा खेतों के दरमियान मौजूद है। हाँ यार, ये अभी ना ऐसे करते हैं, हम पुलिस को फोन करते हैं। यार नहीं, पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए, वो हम पर शक जाएगा उनका यार। नहीं, हम तो इधर गाँव वालों को बताते हैं। इन उलझनों और परेशानियों में मुब्तला इन दोनों अफराद ने फौरी तौर पर यह फैसला कर लिया कि पुलिस स्टेशन जाकर ये वक़ुआ जरूर बताना चाहिए, ऐसा न हो कि कल ये बात हमारे गले पड़ जाए। और ये मुकम्मल सोच विचार के बाद पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। मुबशर है इसमें ना, मुल्ज़म हाई कोर्ट जी भेज दें। जी वालेकुम। पुलिस स्टेशन निशाताबाद पहुंचने के बाद बैठ कर सुकून से बताएं। आप भी बैठ जाएं। हाँ जी, आप बताएं। सर, उधर हम गांव में ना चारा काट रहे थे, उधर हमने फसलों में देखा इंसानी जिस्म की हड्डियां पड़ी थी। इन्होंने अपनी आमद का मकसद बयान किया। इंसानी जिस्म की हड्डियाँ, आपको यकीन है? और यूं जब इनसे गुफ्तगू की गई तो इन्होंने बताना शुरू किया कि हड्डियों का एक ढांचा खेत में पड़ा है। हम इसलिए फौरी तौर पर आपके पास पहुंच गए हैं कि कहीं ये बात हमारे लिए नुकसानदेह न हो कि शायद हमने कहीं कोई जुर्म कर लिया। यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर के ऊपर। कानून के एहलकार हड्डियों का ढांचा सुनकर हैरानियों से इससे पूछने लगे कि वो किसी जानवर का भी हो सकता है। इन बेचारों ने कहा कि सर, हमें नहीं मालूम कि वो जानवर है या कोई इंसान, लेकिन ढांचा जरूर मौजूद है और उसके साथ एक खोपड़ी भी। खोपड़ी पड़ी थी, इंसानी जिस्म को खोपड़ी लग रही थी। इंसानी खोपड़ी। सलीम, आप इसके साथ हैं? अच्छा, मैं खुद जाता हूँ, गाड़ी जो है वो लगवाते हैं। यार गाड़ी लगवाओ, इधर हमने 51 से ज़्यादा में जाना है। ठीक सर, और ही लगवाएं। सलीम, चले हम ना चेक कर लेते खुद मौका से। भाई आओ। इंसान की हड्डियों की बात हमें चेक तो करनी चाहिए कि इंसान की हड्डियाँ या जानवर की हड्डियाँ। कानून के एहलकारों ने पुलिस की मदद करने पर इनका शुक्रिया अदा किया और इनसे कहा कि बस कुछ ही देर में हम तुम्हारे साथ उस खेत की जानिब चलते हैं। और नाज़रीन, इसके बाद यहां से खेतों की जानिब कार्रवाई शुरू हो गई। कानून के एहलकार निशानदेही की हुई जगह की जानिब आ पहुंचे और नाज़रीन, इसके बाद तमाम तर मंजर यहां क्या पेश आया आप खुद मुलाहिजा कीजिए। बस्ती सज्जादा की जानिब पहुंचने वाले कानून के एहलकार इस
ढांचे को देखकर हैरान और परेशान रह गए और ये यकीनन इंसानी ढांचा और इंसानी खोपड़ी है। वारदात की मुकम्मल जांच पड़ताल हो पाए कि आखिर यहाँ ये ढांचा किस तरह पहुंचा, इस ढांचे को यहाँ पड़े हुए वक्त कितना गुजरा और ये किसी औरत का है या मर्द का, यही सारी मालूमात लेने की खातिर यहाँ तफ्तीश और तहकीक जारी थी। इस खबर के फैलते ही पूरी बस्ती के अफराद जोक दर जोक इसी जानिब आते दिखाई दिए। तमाम तर कानूनी तफ्तीश और कार्रवाइयां जारी थीं। इस बस्ती में जंगल के आग की तरह ये खबर फैल चुकी थी कि कानून के एहलकार किसी ढांचे की तफ्तीश कर रहे हैं और इसी दरमियान 4 माह पेशतर गांव से गायब होने वाले 14 साला हसनैन के अहले खाना भी इसी जानिब दौड़ते नजर आए। नाजरीन, हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम ऐसे मनाजिर किसी बाप भाई को कभी न दिखाना कि औलाद ढांचे की सूरत मौजूद है और अहले खाना कुछ नहीं कर सकते। आने वाले बाप ने अपनी औलाद को कपड़ों से पहचान लिया, कहने लगे, हाँ ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही हसनैन है जो 4 माह पहले खो गया था। फोरेंसिक वाले आए हैं, उनके थ्रू वो चेक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगता तो है कि ये कोई इंसान की हड्डियाँ हैं। फर्दर सर इसमें हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस इधर ले रहे हैं, जो भी चीज़ हो फिर फर्दर आपको बताएंगे। नाजरीन, इन तमाम उलझे मामलात को अब यकजा किस तरह किया जाएगा? वीडियो कॉल कर रहा हूँ कि आप भी सर एक दफ़ा इसको चेक कर लें। ये कुछ हड्डियाँ मिली हैं सर जो क्राइम सीन वालों ने इससे इधर से रिकवर की हैं। फर्दर भी हम इसको सर सर्च कर रहे हैं, कोई और चीज़ मिलती है। अभी एविडेंस वो क्राइम सीन वाले यही कह रहे हैं कि ये हड्डियाँ कोई इंसानी जिस्म की हैं, तो फर्दर हम सर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहे हैं। कानून के एहलकार इसी तगोदो में थे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, मुलाहिजा कीजिए आज का ये प्रोग्राम। यहां आने वाले मौके पर मौजूद एसपी ने तमाम अहवाल बजरिए मोबाइल फोन अपने एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस तक पहुंचाना शुरू कर दिया। फर्दर सर इसमें हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस इधर ले रहे हैं, जो भी चीज़ हो फिर फर्दर आपको बताएंगे। खेत में इंसानी ढांचे की मौजूदगी की खबर हुक्काम बाला के लिए इंतहाई अजियत का शिकार थी कि आखिर कानून की मौजूदगी के बावजूद ये सब कुछ कैसे हुआ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस ये कह रहे थे कि मैं ऑफिस में उस वक्त तक मौजूद हूं कि जब तक इस केस के मुल्जिम का पता नहीं चलता। नाजरीन, आखिरकार इस खेत से इस ढांचे को उठाने की तैयारियां शुरू हो गईं। नाजरीन, 4 माह पेशतर की हुई तहकीक और तफ्तीश एक बार फिर आश्कार होने लगी। मालूमात ली जाती रही कि आखिर ये बच्चा उस खेत तक कैसे पहुंचा और फिर आखिरी इत्तला के मिलते ही यानी ट्रैक्टर पर काम करने वाले एक शख्स ने इस बात की निशानदेही की कि हसनैन नामी बच्चे को इसने फलां बिन फलां के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक दिन देखा था। इस निशानदेही पर इसी गांव सज्जादा के एक लड़के को कानून के एहलकार तहवील में ले चुके। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस घर का अहवाल हम आपको किस ज़बान से बयान करें। हर आंख अश्कबार, हर दिल खून के आंसू रो रहा था। आहो बुका जैसे इस घर का मुकद्दर बनकर रह गया।
नाजरीन, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस स्टेशन निशाताबाद में गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स से तफ्तीश का आगाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? खुर्शीद अहमद, तुम्हारा घर किधर है? हसनैन के घर से सामने। हसनैन कौन है? मेरे कज़न का बेटा है जी। उसकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल। अच्छा, अभी ये बताओ कि उस दिन क्या हुआ था? उस दिन उसको मैंने सड़क से लिया था, खंबे के पास से। दौरान इंटेरोगेशन आखिरकार ये बात मंजर पर उभर आई कि उस दिन हसनैन नामी लड़के को यही शख्स मोटरसाइकिल पर अपने हमराह बिठाकर खेतों की जानिब गया था, और उसके बाद जब इससे पूछा गया कि वो लड़का मौत की दहलीज तक कैसे पहुंचा, तो ऐसा लगा कि जैसे गुजरा हुआ एक एक लम्हा इस जालिम जाबिर शख्स की निगाहों में घूम गया हो। क्या कहा था हसनैन को? भी बोड़ेवाल जाना है रक्षा लैन। इसने बताना शुरू किया। तो मुड़ के अगे जाके नहर तो थोड़ा जिहा पिछे कच्ची सड़क में मोड़ लिया। अच्छा, फिर? खांदा आउण डिया, मैं पिछों ਉਹਨੂੰ गलों फड़ के। जोर से बताओ। पिछों ਉਹਨੂੰ मैं गलों फड़िया जी, ਤੇ ਉਹਨੂੰ मैं गलों फड़ के तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं गलत ਕਰਨ ਕੀਤਾ। बताओ ना, खोल कर बताओ क्या किया है, इधर से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है? वो चीख रहा था, चला रहा था, मैं उसके साथ जाती कर रहा था। फिर? हाँ जी, फिर मैं उसको गला दबा के मार दिया। क्या कहा था उसने चीख कर, रो कर क्या कह रहा? ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं जाती की थी जी, पीछे से पकड़ के। तो फिर वो चलाता रहा, तो कहता रहा मैं अपने पापा को बताऊंगा, अपने चाचू को बताऊंगा। अच्छा। फिर मैंने सोचा भी जे इसने उसको बता दिया तो मुझे मार डालेंगे। फिर मैंने उसको गला दबाकर मार दिया जी। क्या लगता था, तुम्हारा रिश्ता क्या था उससे? मेरे कजन का बेटा सी जी। भाई था? हाँ जी। तो जो भाई हों या भतीजे हों या रिश्तेदारी हो, उनके साथ ज्यादती करते हैं, मार देते हैं? नहीं जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18-19 साल है जी। 18-19 साल में ये काम किया तुमने? नाजरीन, समझ में नहीं आया कि इस दुनिया में जिंदगी पाने के बाद इंसान किस नहज पर जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ने इंसान को क्या बनाया और वो क्या बनकर रह गया। और तेरे साथ कौन कौन था? कोई भी नहीं जी। ये जो वाकया तुमने किया है, जब उधर से तुम भागे, किसको पहले बताया था? नहीं जी, मैं किसी को नहीं बताया। तेरे साथ क्या किया था? माफ़ कर दो सर। तुमने उस बच्चे को माफ़ किया था? क्यों गला दबाया था उसका? मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे फंसा देता। क्या किया था तुमने, वो तुम्हें फंसवा देता? गलती होगी सर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। परवरदिगार किसी वालिदैन को ये मंजर कभी ना दिखाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.